İstanbul gibi şehir hiç yok sanmam, içinde tarih ve milyonlar var. Şarkılar hep bu şehri anlatıyor, bak huzur verir bu şehrin parçası olmak. Bu şehirde yaşayıp surat asan olamam, İstanbul takımı tutar ama bak atar. Herkesin olmak istediği yer, tabi memleketin daha güzel. Tamam o zaman, İstanbul dünyanın başkenti. Küçük yerde yaşıyorsun ama ben değil. Ya şehri yenersin ya da tam tersi. Nerede olan diğer şehirler çoktan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार आज मैं ये एक ऑफिस में आया हूँ, ये लोग किमलिक वगैरह टीआरसी वगैरह बनाते हैं, तो मैंने सोचा इनसे इंटरव्यू करते हैं ताकि जो भी नए पाकिस्तान से या इंडिया से आना चाहते हैं या अफ़गानिस्तान से या बांग्लादेश से, Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol abi, ben de iyiyim. Abi sana biraz söylemek lazım, yani Pakistan'da, Hindistan'da insanlar geliyor, turistik vizeler, bazen gezmeye geliyor, yani onlar için soracağım sana. Tamam. İnşallah. Eğer Hindistan'da, Pakistan'da turistik vizesi kişiler geliyor, onun oturma izni istiyorsun, nasıl ayarlar yapıyorsun? Hindistan, Pakistan yani vizeyle Türkiye'ye gelen bir yabancı arkadaşımız ilk önce bize başvurduğunda vize türüne bakıyoruz. Ondan sonra vizesi geçmiş mi geçmemiş mi ona baktıktan sonra karar veriyoruz. तो यार ये जैसे कि अभी मैंने इससे पूछा कि जो भी पाकिस्तान या इंडिया से आता है टूरिस्ट वीज़े पे, तो इसने बोला कि यार उसका पहले वीज़ा देखते हैं कितना रह गया है, कितने दिनों का है, तो वो देखने के बाद हम उसकी एप्लीकेशन भेजते हैं. Tamam, başvuru sonra nasıl oluyor yani insanlar? Eğer başvuru durumu uygun ise ondan sonra biz buradan evrak hazırlaması için pasaportunun fotokopisini alıyoruz. Fotoğrafını ofisimizde çekiyoruz ve ondan sonra gereken oturma izni için randevusunu aldıktan sonra işlemin takibi için kendisine bilgi veriyoruz. तो यानी कि कह रहे हैं कि जब वो इधर आ जाता है उसकी एप्लीकेशन हम फिल कर देते हैं, तो उसके अलावा जो उसका पासपोर्ट फोटो कापी वगैरह ये वगैरह हम लेते हैं और जो है अपॉइंटमेंट ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फिल करने के बाद उसकी अपॉइंटमेंट का वेट करते हैं. यानी कि बास टाइम होता है अपॉइंटमेंट 2 हफ्ते बाद आती है, लेकिन इस्तांबुल में ज़्यादातर नॉर्मली महीने बाद ही आती है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद. तो इसमें से एक और चीज़ का पूछते हैं tam peki abi, bazen yani kişi acele istiyor yani. Evet. Acele yani bazen diyor ki biz o kadar beklemeyeceksin. Önce istiyor, acele istiyor, yani bir hafta için istiyor. Başka şehirde yapıyor ya da İstanbul'da olur böyle gibi. Evet. Şimdi tabii ki İstanbul kalabalık bir şehir olduğu için bugün başvuru yaptığımızda sırasını en az 3 ay beklemesi lazım. Bu süreyi beklemek istemeyen bir kişi hızlı bir ikamet almak için de farklı bir şehirden başvuru yaparak o sağlıklı bir şekilde oturma iznini alması mümkün. तो ये कह रहा है कि अगर इस्तांबुल में, क्योंकि ऐसी बात है बहुत रश होता है, बहुत लोग टूरिस्ट आते हैं, तो ज़्यादातर लोग इस्तांबुल से ही अप्लाई करते हैं. तो कह रहा है कि मैं दूसरे शहर से अप्लाई करता हूँ, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि किस शहर से करेगा, किसी भी शहर से जाके कर सकते. Yani bazen kişi dedin ki sadece İstanbul için istiyor acil olur ya da olmaz İstanbul için. İstanbul için acil istediği zaman İstanbul kalabalık bir şehir. Yani acil almak bazen zor olabilir. İmkan olmayabilir. तमाम. तो मैंने ऐसे पूछा कि यार बास टाइम बंदा दूसरे शहर में नहीं जाना चाहता, तो इस्तांबुल से ही लेना चाहे तो कितना इजी है काम. तो कहता है बास टाइम हो जाता है पॉसिबल, बास टाइम नहीं होता. तो ये जब आप आओगे तो आप डायरेक्ट बात कर लो, आपके अपने ऊपर है. tamam, bazen kişi oturma izni aldıktan sonra yani çalışma izni istiyor. O zaman nasıl ayarlar yapıyorsun? Evet, zaten çalışma izni almak için birinci maddesi ilk önce oturma izni alması lazım. Evet. Oturma izni kartını aldıktan sonra en az 6 aylık bir oturma izni alıyor olmamız gerekiyor. Evet. Buradan ya kendi adına bir şirket kurulumu yapılacak, evet, ya da bir tane şirkette çalışması lazım. Yani çalışma iş adresi olduktan sonra çalışma izni için yapabiliriz. तो यार ये कह रहा है कि अगर आप इधर पे
उतरमा इज़नी मतलब ये जो रेजिडेंट परमिट या TRC कार्ड या जो भी इसको आप कह लो, अगर जब भी आप ले लेते हो तो उसके बाद ये आपके लिए एक कंपनी ढूंढता है या कोई भी होटल ढूंढेगा, रेस्टोरेंट ढूंढेगा, कोई भी ऐसी जॉब ढूंढेगा जो आपको वर्क परमिट दे दें। तो जब वो आपको वर्क परमिट देने के लिए सारा डॉक्यूमेंटेशन ये खुद ही करेगा, आपको मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपसे सिर्फ पैसे लेगा इस चीज़ के। तो इसीलिए मैं आज इधर आया भी हूँ। तो कह रहा है अगर आप उसके अलावा ये वाली ऑप्शन पे नहीं भी जाते, मतलब वर्क परमिट नहीं लेना चाहते, तो अपना भी बिज़नेस कर सकते हो, मतलब अपना बिज़नेस के नाम पे भी आप वर्क परमिट ले सकते हो। तो उसका अलहदा सीन है, उसके लिए भी आपको सारी पेपर वर्क जो भी है वो करके देता है। एड्रेस आपको चाहिए होता है या आपको ऐसी कोई ऑफिस लेना है, वो वगैरह जो भी पेपर वर्क होगा ये उसमें आपकी सारी हेल्प करेगा। तो जाहिर सी बात है, कंसल्टेंसी वाला है तो ये आपसे उसके पैसे भी लेगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि कोई लड़का या कोई भी बंदा यहाँ पे शादी करना चाहता है, मतलब उसको पता नहीं है कि यार मैं तो कैसे शादी कर सकता हूँ, पेपर वर्क क्या है सिटीजनशिप के लिए, तो ये वो भी करते हैं कि एवलन में किस्ते और यानी onlar da ayarlar pe avlak istiyor, nasıl yapıyor onu? Tabii burada bir yabancı kişi gerek Türk vatandaşı, biri Türk vatandaşı olur ya da ikisi de yabancı olabilir. Burada ne şekilde evlenmek istediğini bilmiyor ise biz buradan resmi bir şekilde evlilik yapması için yardımcı oluyoruz. Evraklarını hazırlayıp resmi evliliklerini yapıyoruz. तमाम ही यानी कि ये कह रहा है कि यार अगर कोई जो गैर मुल्की है, यानी कि ये बांझी जो है गैर मुल्की, कोई बोलते हैं कि कोई गैर मुल्की अगर इधर शादी करना चाहता है और उसको पता नहीं है पेपर वर्क का, तो वो भी मैं कर रहा हूँ। यानी कि जब दोनों दूसरे मुख्तलिफ कंट्री के भी अगर कह लो इधर शादी करते हैं तो उनकी भी ये पेपर वर्क कर देता है, लेकिन उनको जाहिर सी बात है नेशनलिटी तो नहीं मिलेगी। यार बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि इधर नेशनलिटी कैसे ली जा सकती है। तो नेशनलिटी का जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि आप इधर प्रॉपर्टी खरीद लो, जो कि सबको पता है $2.5 लाख में मिलती है, तो उसके बारे में पूछते हैं। Abi bazen kişi ev almak istiyorum yani zaten biliyorsun yani başvuru için bilmiyor. Evet, o yüzden tabii. Onu ayarlar nasıl yapıyor? Şimdi bir yabancı kişi buradan gayrimenkul ev satın almak istiyordur. Bunlarda mesela ilk önce satın almak istediği evini belirliyor ve ne şekilde ev satın almak istediği konusunda evraklarını hazırlayıp tapusunu üstüne yapıyoruz. Ondan sonra bu tapu üstünden gerekirse oturma iznini uzatabilir, oturma izni alabilir ve 5 yıl eğer o ev üstünden oturma izni aldıktan sonra da Türk vatandaşı olabiliyor. Bunun yanında eğer yatırımcı bir yabancı kişi Türkiye'ye geliyorsa $250.000 bir yatırım yaparsa Türkiye'de hemen aynı anda vatandaşlık başvurusu da yapabilir. यार मैंने इससे यही पूछा था कि अगर कोई घर खरीदता है तो जाहिर सी बात है $2.5 लाख जब आप देते हो तो आप उसी टाइम नेशनलिटी लेने के काबिल हो जाते हो। तो उसके लिए आपको फिर भी एप्लीकेशन थोड़ा पेपर वर्क होता है, वो जाहिर सी बात है आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको तुर्किश इतनी नहीं आती होती। तो उसके लिए आपको इस तरह के ही जो कंसल्टेंट हैं वो बैठे हुए हैं जगह जगह पे, उनकी आपको हेल्प लेनी पड़ती है। तो मैं आज इसलिए इसके पास भी आया हूँ कि ताकि आप लोगों के साथ ये भी एक्सपीरियंस शेयर किया जा सके कि यार अगर आपको कोई नहीं मिलता तो आप इसके ऑफिस में आ सकते हैं। मेरी बैक साइड पे इसका ऑफिस का एड्रेस भी लिखा हुआ है, नंबर भी लिखा हुआ है, मैं आपको वैसे भी बता दूंगा कि आप कैसे इसके ऑफिस तक आ सकते हो। तो बाकी इसने मुझे एक और इन्फॉर्मेशन में बोला है कि अगर आप कोई घर ले लेते हो, मतलब कोई छोटी मतलब $2.5 लाख के मतलब बराबर नहीं लेना चाहते, एक छोटी रकम में मतलब जितना आपका बजट आता है उसकी रकम में एक फ़्लैट ले लेते हो, तो फ्लैट में आपको तकरीबन 5 साल रहना होता है। 5 साल रहने के बाद आपको भी नेशनलिटी मिल जाती है। Yani bazen kişi çalışma izni aldım. O kaç sene sonra yani vatandaşlık alıyor? 5 sene çalışma izniyle devam ettiği zaman aralıksız, o 5 sene üstünden çalışma izni aldığı zaman yine vatandaşlık başvurusu yapabilir. Yalnız burada böyle bir püf noktası var. Türkiye'de çalışma izni var ama yurt dışında kalma süresi de 6 ayı geçmemesi lazım. Kendine ülkeye gitmek lazım. Yani Türkiye'de 5 sene çalışıyor. Evet. Fakat yurt dışına çıkışlarda parça parça ya da tek parça halinde 6 ayı geçmemesi lazım. 6 ya da en fazla gitmeyecek. Aynen. तो मैंने इससे पूछा कि यार अगर कोई वर्क परमिट पे इधर काम कर रहा हो तो वो किस तरीके से नेशनलिटी ले सकता है। तो उसने कहा वो 5 साल काम करेगा और इन 5 सालों में अगर उसको अपने मुल्क या किसी और कंट्री जाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 6 महीने से ज़्यादा जा सकता है, मतलब किस्तों में। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार जाकर 6 महीने बाहर रहे। ज़ाहिर साल में 1 महीना चला जाए, आधा महीना चला जाए, 2 हफ्ते चला जाए, 4 हफ्ते चला जाए, 1.5 हफ्ता चला जाए, इस तरीके से मतलब वो सेटिंग करके टोटल जो है ना 5 सालों में यानी कि 6 महीने के लिए वो अपने कंट्री या जिस कंट्री भी वो जाना चाहता है वो जा सकता है। उस सूरत में भी वो जो है ना नेशनलिटी के लिए एलिजिबल हो जाता है और नेशनलिटी अप्लाई कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे
तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो मुझे बताइएगा, मैं एक बार दोबारा इसके साथ वीडियो बना लूँगा, मसला नहीं है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो यार जैसे कि मैंने अजय दानिश मालिक, जो कि ये एक प्राइवेट ऑफिस है, तो कंसल्टेंसी है बेसिकली, तो इसके पास वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि मतलब मैं आपको ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि यार आप इसी से बनवाओ या इसी के पास जाओ। ये सिर्फ आपको दिखाने का या एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब था मेरा, क्योंकि मैं खुद अपना जो भी काम है ज़ाती वो मैं इसी से करवाता हूँ। तो मतलब मेरा तो इस पर पूरा भरोसा है, मतलब मेरा काम में कोई मतलब अभी तक कोई मसला पेश नहीं आया। तो बाकी अगर आप लोग चाहे तो आप इससे भी करवा सकते हैं काम। अगर आपका जिससे दिल चाहे या जिससे पे आपका दिल मुतमईन हो, आप उसके पास जाके करवा सकते हैं। अजय दानिश मालिक, यानी कि इस तरह की बेशुमार कंसल्टेंसी आपको इस्तांबुल में मिल जाएंगी, लेकिन हर कोई भरोसे के काबिल नहीं होता, ये आप समझ सकते हैं। तो मेरा इस पर भरोसा है और मैं इसके पास तकरीबन कोई 2.5-3 साल से, मतलब 3 साल से मैं अपना कार्ड वगैरह इसी से काम करवाता हूँ, रीन्यू वगैरह का। तो बाकी मैंने जैसे आपको बताया था कि ये क्या क्या काम करता है, तो वो आपको बता देता हूँ। चलिश्मा इज़नी वर्क परमिट बनवाता है, दावते गोंदर में, यानी कि किसी को इनविटेशन लेटर चाहिए हो तो वो दे देता है। उचाक बिलत यानी कि सस्ती टिकटें खरीद के दे देता है। तुरमा इज़नी यानी कि रेजिडेंट परमिट जिसको कहते हैं, तर्जुमे व नोटर यानी कि तर्जुमे और नोटर का काम भी करता है, वीज़ों के काम भी करता है, डिपोर्ट वालों के भी काम करता है। उसके अलावा ओज़ल सालिक यानी कि स्पेशल सिक्योरता यानी कि इंश्योरेंस वगैरह का काम भी करता है। बैंक साबा यानी कि बैंक में अकाउंट वगैरह भी खुलवाता है। तो अब बात करते हैं कि इसके ऑफिस में आपने कैसे पहुंचना है। जो एमिनोनो की तरफ जो ट्रामवे चलती है एमिनोनो वाली, अगर आप उसके स्टॉप में, ग्रैंड बाज़ार से पहले एक स्टॉप आता है इस्तांबुल लालेली, और अक्सराय से अगला स्टॉप है, यानी कि ग्रैंड बाज़ार और अक्सराय के दरमियान वाला जो स्टॉप है ना, इस्तांबुल लालेली के नाम से एक स्टॉप है। तो आपने उस स्टॉप पे उतरना है और ये आगे आपको वीडियो में मैंने दिखा दिया कि आपने इसके ऑफिस के एड्रेस तक कैसे पहुंचना है। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। या आपने साथ, जैसे स्टॉप के साथ आप देखेंगे आपको डबल ट्री एक बहुत ही बड़ा 5 स्टार होटल है, इसके साथ ही आगे हॉस्टल के जो है ना गली है, वो गली आपने राइट टर्न लेनी होती है। राइट टर्न लेने के बाद लेफ़्ट टर्न लेनी है, फिर नीचे राइट टर्न लेनी है और फिर लेफ़्ट टर्न लेनी है। कोने पे उसकी बिल्डिंग है ऑफिस की, फर्स्ट फ्लोर पे उसका ऑफिस है। तो ये बाकी आप वीडियो में देख सकते हो कि मतलब मैं किस तरीके से उसके ऑफिस का रास्ता आपको दिखा रहा हूँ, मतलब आपके लिए आसानी हो जाएगी, ताकि कोई ये ना कि यार मुझे बताया नहीं। बाकी मोबाइल नंबर भी इसके मैंने शेयर कर दिए हैं, कोई उससे बात करना चाहे तो मोबाइल पर डायरेक्ट भी रब्ता कर सकता है, व्हाट्सएप पर भी बात करना चाहे तो व्हाट्सएप पर भी कर सकता है। तो मज़ीद अगर कोई और इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी है।